Namaskar, good evening viewers. You're watching House Highlights on Sunset TV. I'm your host Rajiv Kumar Singh. In this program, we will look at the highlights of Tuesday's proceedings in the Parliament. Let us first take a look at the headlines. Lok Sabha takes up discussion on no confidence motion against the central government. Congress MP Gaurav Gogoi initiates debate. Union Minister Kiren Rijiju says opposition will regret bringing in the motion at the wrong time. Parliament passes Inter-Services Organisation Command, Control and Discipline Bill with Rajya Sabha approving it. The IIM Amendment Bill 2023, National Nursing and Midwifery Commission Bill and National Dental Commission Bill also passed by the upper house. Rajya Sabha witnesses a special moment today when the chair, speaker and table staff were all women for a brief period during the debate in the House. Let us begin with the proceedings in the Lok Sabha. The lower house today discussed the motion of no confidence in the Council of Ministers. However, before the motion could be moved, there was a bit of tussle between the Treasury and the opposition benches as Congress member Rahul Gandhi was expected to bring in the motion, which was instead moved by Gaurav Gogoi. सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया ऐसे? क्या एकदम सुबह सर 11:55 इनका चिट्ठी आया है सर, अभी 12 बजे चेंज हो गया। क्या हो गया? थोड़ा हमको भी समझ में आए सर, यही हमारा रिक्वेस्ट। लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड सर। So he just at 11:55 he has given a letter that Mr. Rahul Gandhi is going to speak. What happened in 5 minutes? What is the problem, sir? We are very much enthusiastic to listen Mr. Rahul Gandhi, sir. आप इस सदन के रक्षक हैं। आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए। बताइए, एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। After order was restored by the Speaker, Congress member Gaurav Gogoi moved that this House expresses its want of confidence in the Council of Ministers. Members from across the party lines took part in the discussion. While the opposition targeted the government on the Manipur issue, NDA members as well as BJD representative Pinaki Mishra spoke against the motion. The discussion is to continue on Wednesday and Thursday too. Let us listen in to the excerpts from Tuesday's discussion. जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है सर। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी। सर, साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए, कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया। अफसोस की बात है सर कि जो सरकार एक इंडिया की बात करती है,
आज उन्होंने 2 मणिपुर आपने बना दिए हैं। आपके राजनीति से 2 मणिपुर आज बन गए। जो 2 महिला जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई है, उसमें से एक महिला का पत्नी कारगिल में हमारे देश के लिए हमारी सीमा को सुरक्षा कर रहा था। वो कारगिल का जवान बोल रहा है मैंने देश को बचाया, पर मैं अपने घर और अपने परिवार को नहीं बचाया। पोजीशन की बात करते हैं कि हमने बहुत विकास कर दिया। मैं एक ऐसा बदनसीब आदमी हूं सर कि जिसकी अपनी छोटी बहन इलाज के बिना मर गई। 93 में मेरे यहां कोई डॉक्टर नहीं था जो पेट दर्द का भी इलाज कर पाए। 93 में मैंने अपनी छोटी बहन को खोया है सर। आज उसके भाई होने के नाते मुझे गर्व है कि मेरे लोकसभा में एम्स जैसा इंस्टीट्यूट प्रधानमंत्री। देवघर है सर, 12 ज्योतिर्लिंग का देवघर है, वहां लोग पूजा नहीं कर पाते थे। आज बेंगलोर से, आज बंबई से, आज अमेरिका से, लंदन से सभी लोग वहां एयरपोर्ट पर चढ़कर आते हैं। यह विकास है। आज मेरे लोकसभा में 2 मेडिकल कॉलेज, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, 4 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 16 ITI, 2 एग्रीकल्चर कॉलेज, 1 डेयरी कॉलेज, 4 केंद्रीय विद्यालय, ये सारी चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है सर। इनका विरोध यह है कि गरीब के घर में जो चूल्हा जल रहा है, जो घर घर में पानी जा रहा है, जो नल जल की पहल चल रही है, जो गंगा से पानी देवघर आने की बात चल रही है, उसका यह विरोध है सर। इनका विरोध यह है कि बाइडेन ऑटोग्राफ क्यों लेता है। इनका विरोध यह है कि पापुआ न्यू गिनी का जो है प्रधानमंत्री उनका पांव क्यों छूता है। इनका विरोध यह है कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्रधानमंत्री है वो उनको बॉस क्यों कहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे पिछड़े इलाके हो, चाहे देश हो, चाहे दुनिया हो, जितना काम किया है उसके कारण इनको लगता है कि 2024 में नहीं आने वाले हैं। आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है सर, अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ है। आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है उस आदमी के खिलाफ है जिसने कि लोगों को मकान बना के दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के पीछे है जिसने कि लोगों को पीने का पानी दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसने शौचालय दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के खिलाफ है जिसने सबों के घर में उजाला लाने की कोशिश की। Public has elected him to come to parliament, and moreover, he is holding the position of prime minister. This is not fair on the part of the sir. Over near about 1 month, all the members of parliament belonging to the opposition, every day in day out, they are just making plea before them, and this ruling party is trying to support all these rules and regulations of the parliament and also the Constitution of India. Sir, is our Prime Minister a roving ambassador or a traveling salesman? Because he even went to Sikar in Rajasthan to campaign in the midst of all this. Now, the Prime Minister has to reply why he was visiting foreign countries when Manipur was burning. Sir, let me come to some other points. The major failure of the government is to check price rise. Price of tomato is at 250 rupees a kg. He has failed to provide jobs. It is destroying social harmony. We have seen the communal riots in Nuh and Gurugram in Haryana. They are still continuing, polarizing the communities, destroying federalism. सर 9 years में 9 साल में 9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है। अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र 2 बार। दिस इज इट। एंड व्हाट इज इट? 7 sins of महात्मा गांधी। पॉलिटिक्स, उस दिन मुझे अच्छा लगा जब अमित शाह जी बोल रहे थे सिद्धांत के बारे में। आज द 7 sins of महात्मा गांधी, उसमें का एक है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। और मुझे याद है जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तब कह रही थी पार्टी विद अ डिफरेंस। हाउ आर यू अ पार्टी विद अ डिफरेंस? 9 साल में 9 सरकारें गिनवाई है मैंने। फिर बहुत हो गई महंगाई की बात। आई थिंक प्रोफेसर रॉय जस्ट टच्ड ऑन सम ऑफ इट। ही ओनली स्पोक अबाउट टमाटो। प्याज का क्या है, दाल का क्या है, आटे का क्या है, नमक का क्या है, चावल का क्या है, तेल का क्या है, चाय और दूध। टोटल जब यूपीए की सरकार थी ये सारी थाली 500 रुपये के अंदर बचती थी। आज भाव आप देखेंगे तो 1000 के ऊपर इस सब का हो। दैट इज द फूड इन्फ्लेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
मुझे लगता है कि आज देश जो है मोदी जी के हाथों में बहुत सुरक्षित है। इसलिए पूरे विश्व में यह संदेश गया है कि मोदी सरकार आतंकियों के सामने जो है झुकने वाली नहीं है। यहां पर गए 9 सालों में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ मैं यहां पर बताना चाहूंगा। गए 9 सालों में जो है नेशनल हाईवेज 54,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे जो है बनाए गए। एयरपोर्ट्स की संख्या जो है 74 से बढ़कर जो है 148 हुए। रेलवेज जो है 1218 रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन हुए। वंदे भारत जो है ट्रेन यहाँ पर शुरू हुई। स्मार्ट सिटीज बनाए गए। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो है महिला सम्मान को देखते हुए हर घर जो है शौचालय बनाने का काम यहाँ पर किया। और स्वतंत्र के बाद आज तक लोगों को नल से जल नहीं मिल रहा था, लेकिन आज जो यहाँ पर जो है लोगों को हर घर जो है नल से जल देने का काम जो है यहाँ पर सरकार कर रही है। The government can always work on the infiltration by controlling the borders, sir. यह सरकार बॉर्डर से कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है, क्यों इन्फिल्ट्रेशन होने दे रही है सर? सर, आज की तारीख में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है आप जनता का सर। जहां समाजवादी पार्टी ने हमेशा कहा कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्त हो। सर, आज की डेट में सर जो मिडिल क्लास है, जो गरीब तबका है सर, सब परेशान हैं। चाहे वो स्कूल की फीस हो, चाहे वो मेडिकल बिल्स हो, चाहे वो रेंट्स हो, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे वो लैंड प्राइसेस हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल और केरोसिन के दाम हो। You have to rise above partisan party politics and work in partnership with constructive cooperation in a federal structure. That's what Mr. Patnaik has always believed in, and that's what Amit Shah ji in fact said, that this is the reason that I appreciate Mr. Patnaik's role as Chief Minister. I cannot support a no confidence motion against a central government today, even though we are against the BJP as a political party. But the central government, which may not have given us our entire wish list. No central government ever can give every state government's entire wish list. I recognize that fact. There are fiscal constraints where resources are in short supply, and therefore it's not possible. So I am grateful, therefore, for many things that the central government has done for Odisha, which is why, in any case, I am unable to persuade myself on behalf of my party and my leader to support a no confidence motion today, which has been brought by the Congress party. जिस तरह से बाबा साहब ने उस समय में सबके साथ विचार विमर्श करके हमारे देश का संविधान बनाया था, उसी तरह से ही सबके साथ विचार विमर्श करके 2020 में जो शुरुआत हुई, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हमारे देश के अंदर अब आई है। उसी के तहत मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कोशिश है हमारी सरकार की कि एजुकेशन जो है उसका एक्सेस सबको होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसकी मोटो है, उसका ये ध्येय है। देश का राजधानी में नॉर्थ ईस्ट के कई बच्चे के साथ में जुल्म हुआ, कई लोगों को मार दिया गया है। मारने के बाद केस को भी रफा दफा कर देते थे, लेकिन कहानी बदल गई 2014 के बाद। 2014 के बाद आदरणीय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, मैं उनके साथ में गृह राज्य मंत्री के रूप में, हम लोग को पूरा याद है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पहली बार डीजी कॉन्फ्रेंस हुए थे गुवाहाटी में, पहली बार आजादी के बाद देश का डीजीपी कॉन्फ्रेंस को दिल्ली से बाहर लेकर के गुवाहाटी में मीटिंग कराया 3 दिन। और उसी मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया कि जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ, नॉर्थ ईस्ट से जो लोग आते हैं उसके साथ अच्छा व्यवहार, उनके साथ किस तरह से अच्छा सुरक्षा प्रदान करे, इसके बारे में एक बात रखा। उसके बाद दिल्ली पुलिस के अंदर में हम लोग ने एक स्पेशल व्यवस्था कराई और नॉर्थ ईस्ट से, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का 8 राज्यों से लगभग 1000 लोगों को दिल्ली पुलिस में भर्ती कराया। आज दिल्ली पुलिस के हर एक पुलिस स्टेशन में नॉर्थ ईस्ट के जो लड़के लड़कियां वहां तैनात हैं। मणिपुर के साथ म्यांमार की सरहद लगती है,
और दशकों से जो उत्तर पूर्व के अलगाववादी हैं वो म्यांमार में शरण लेते रहे हैं और म्यांमार का जो जुंटा है उसके जो रिश्ते हैं चीन के साथ वो पूरी तरह से जग जाहिर है और पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है। और इसलिए जब भी उत्तर पूर्व में किसी तरह की कोई अस्थिरता होती है तो उसका असर सिर्फ देश में ही नहीं पड़ता, उसका असर जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके ऊपर भी पड़ता है। मैं विपक्ष से पूछती हूं कि अगर मणिपुर की महिलाएं आपको इतनी महत्वपूर्ण रखती हैं तो 4 मई को आपका डेलीगेशन वहां क्यों नहीं जाता? 3 महीने के बाद पार्लियामेंट शुरू होने के बाद आपके विपक्ष का पार्लियामेंट का पूरी टीम बनाकर आप वहां जाकर चौकसी के लिए क्या दिखाना चाहते हैं? फोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, उसकी मां के रोना दिखाने के लिए? मैं पूछती हूं कि राजस्थान में जहां पर विपक्ष की सरकार है, जब एक लड़की के साथ इतनी बुरी तरीके से व्यवहार होता है, अत्याचार होता है, तो विपक्ष का डेलीगेशन आज तक राजस्थान क्यों नहीं गया? पार्लियामेंट के विपक्ष के इन्होंने उत्तर देना चाहिए। Sir, why our Prime Minister hesitated to come to our Parliament? Is it because you see all these opposition members in Parliament as your enemies? Sir, but I wish to remind you once again that we were also elected by the people just like you. Small state like Manipur, if the government is not able to handle the situation, not able to restore the peace, not able to maintain the law and order and tranquility in a small state like Manipur, then what is the efficiency and what is the double engine power of the government at the center and the state? And what is the strength of the Prime Minister having such a strong office of the Prime Minister? Time for a very short break in the bulletin. News from the upper house on the other side. क्या होंगे प्रश्न? क्या होंगे मुद्दे? किन बिलों पर होगी चर्चा? किन विषयों पर होगी बहस? देश की सबसे बड़ी पंचायत में क्या होगा खास? संसद के दोनों सदनों के एजेंडे का पूरा ब्यौरा देखिए सुबह 8 बजे संसद में आज, सिर्फ संसद टीवी पर। Welcome back. Parliament passed the Inter-Services Organizations Command, Control and Discipline Bill 2023 with Rajya Sabha approving it today. The bill was already passed in the Lok Sabha. Replying to the discussion on the bill, Defence Minister Rajnath Singh said that it is necessary that Army, Navy and Air Force work with better coordination to face the new challenges. Therefore, by combining the personnel of the three services, inter-services organizations are formed which will work in an integrated manner. सभापति महोदय, जहां तक के वारफेयर का प्रश्न है, वारफेयर का स्वरूप बदलता रहता है समय समय के अनुसार। अब क्योंकि वारफेयर अब कन्वेंशनल नहीं रह गया है, ये हम सभी जानते हैं, बल्कि वारफेयर टेक्नोलॉजी व नेटवर्क सेंट्रिक यह होता जा रहा है। अतः यह आवश्यकता है कि जो हमारे नए चैलेंजेज हम लोगों के सामने आ रहे हैं, उनका सामना करने के लिए हमारी सेनाएं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उनके अंदर की बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बेहतर तालमेल होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखकर ही यह बिल सदन में लाया गया है। तीनों सेनाओं के पर्सनल्स आपस में एक साथ मिलकर काम करें और तीनों सेनाओं के मिलने से ही इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बनता है। और मैं समझता हूं कि यह ऑर्गेनाइजेशन बन जाने के बाद, यह एक्ट पास हो जाने के बाद, हमारी ये जो इंटीग्रेटेड होकर हमारी ये इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है और बेहतर तरीके से यह काम कर सकेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। The Parliament on Tuesday passed the Indian Institutes of Management
Amendment Bill 2023 with Rajya Sabha approving it. The Lok Sabha has already passed the bill. The bill declares Indian Institutes of Management as institutes of national importance. Replying to the discussion on the bill, Education Minister Dharmendra Pradhan said IIMs have been given autonomy so that they can emerge as centers of academic excellence. Members cutting across party lines participated in the discussion. इसकी जो डायरेक्टर की नियुक्ति, उसके ऊपर उसकी जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनती थी, बोर्ड जो बनती थी, बोर्ड की मुखिया की नियुक्ति, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड की मेंबर और डायरेक्टर, ये सब सरकारी संस्था होने के उपरांत इनकी अकाउंटेबिलिटी सरकार के साथ नहीं है। इसीलिए आईआईटी में जैसे बोर्ड की गठन, बोर्ड की चेयरमैन की नियुक्ति और डायरेक्टर की नियुक्ति की प्रक्रिया, उसकी एक सेटल प्रक्रिया सारे सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस की है और सब ऑटोनॉमी के साथ है, सब ऑटोनोमस है, सब एकेडमिक एक्सीलेंस उनकी रहे, इस पैरामीटर्स के साथ है। हमने इसको बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी, आइजर की इक्विवेलेंट आईआईएम को भी हमने विजिटर्स नॉमिनी आज बोर्ड ऑफ द गवर्नर की चेयरमैन, डायरेक्टर नियुक्ति की प्रक्रिया और उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन अगर आवश्यकता है तो लेने की समानता है इस बोर्ड में, इसमें हमने प्रपोज किया है। The Parliament has passed the National Nursing and Midwifery Commission Bill 2023 with Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha has already passed the bill. The Parliament also passed the National Dental Commission Bill 2023. The Lok Sabha has already passed the bill. Replying to the discussion on both the bills, Union Health and Family Welfare Minister Dr. Mansukh Mandavia said government is working with a holistic approach in medical sector to provide quality education. He said the number of MBBS seats in the country has crossed 107,000 mark, which were 54,000 seats before 2014. हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तो बन गया, लेकिन वहाँ डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर चाहिए तो हमें मेडिकल की सीट भी बढ़ानी पड़ेगी। और मैं आपको एक फ्लोर पर बताना चाहता हूँ कि 2014 के पहले 54,000 MBBS की सीट थी, आज 1,07,000 MBBS की सीट बन। आज मेडिकल MBBS की कॉलेज 350 थी, आज 704 MBBS की कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। एक क्यों किया? हम मानते हैं कि हमें डिस्पेंसरी चालू करनी है तो हमें मेडिकल कॉलेज बढ़ानी होगी, हमें डॉक्टर बनाना होगा। In the Rajya Sabha, when the House met for the day, Chairman Jagdeep Dhankar disallowed the adjournment notices moved by opposition members over Manipur issue. The chairman said he had indicated that the discussion on the Manipur issue can be much beyond 2 hours and half hours, and the government and the Home Minister have indicated their willingness. Leader of the House, Piyush Goyal, reiterated that the government is ready for discussion. बहुत keen है तो मैं अभी गृह मंत्री जी की कैबिनेट लेके आता हूँ, मैं चेक करता हूँ गृह मंत्री जी कहाँ पर है। अगर ये एग्री करते हैं तो 12 बजे लिस्ट करके इसको शुरू करते हैं। Let me find out if the Home Minister is there. पहले इनको एग्री करवाओ। Okay, gentlemen. Leader of the House has indicated he is prepared for a discussion at 12, and he will find. You want discussion or you want 267? Sorry, I can't go against my ruling. As the notices are not in conformity with the rules and my ruling dated 8 December 2022, I am unable to persuade myself to allow the notices received today. Rajya Sabha witnessed a historic first today when the chair, speaker and table staff were all women for a brief period during the debate in the House. When Rajya Sabha member Mamata Mohanta was speaking in the House, Phangnom Konyak was presiding over the proceedings, and the table in the well of the House was occupied by officials who were all women.
The upper house witnessed lighter moments. Chairman Jagdeep Dhankar's remarks made the house burst into laughter. Take a look. बहुत शानदार था। उनका था, अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा, मगर आपके तरह कौन मिलेगा। आपके साथ तो ये मंजर रौनक जैसा है, आपके बाद मौसम बहुत सताएगा। क्या मौसम लेगा, कैसा सताएगा, ये मुझे मालूम नहीं। मान्यवर, ये मौसम मुझे सता रहा है। आई सीक योर प्रोटेक्शन। इस मौसम का शिकार आपने मुझे कर दिया है। मतलब आप देखिए, मेरे लिए तो मौसम सुहाना होना चाहिए था, आपने ऐसा नहीं होने दिया। लेट अस मेक अ न्यू बिगिनिंग। मौसम ठीक ठाक रहे। With this, we come to the end of House Highlights. For daily updates, keep watching Sunset TV. Good night.